Good morning, girls. How are you? Let's start our chapter. Today we are going to do chapter number 6. So am I audible today? You guys can listen me now? Yes. Mehak and Diksha. Okay, dear. Let's start our first chapter. Sorry, sixth chapter. Chapter name is Editing the Draft and Preparing the Final Draft. Okay, how we can edit the draft and prepare the final draft. What is draft? Draft which is not final, which is subject to change. This is called draft. Right? This is a rough version. Okay. Hmm. So in this they have given introduction. Why drafting matters. Drafting is the process of putting your ideas on paper in a rough, provisional version. It is not meant to be perfect. Instead, it helps you organize your thought, explore ideas, and see your evidence and examples support your thesis. Okay, draft which is not final, okay, which is a rough version of anything. ठीक है, तो क्यों important है? It helps you. Why it helps you? It helps you organize your thought, explore your ideas, and see how your evidence and examples support your thesis. Okay, so that is why the draft matters. The second step is steps for draft writing a draft. How we can writing a draft. The first step is after pre-writing. Before you draft, you should have already pre-written, chosen a thesis, and organized evidence. Pre-written means brainstormed ideas gathered in our mind. Chosen a thesis means the main idea on which we are going to do your work. Okay, and organized evidence decided what examples and reason will support your thesis. Okay, so this is come in the first step after pre-writing. The second step is writing the first draft. So how can you write the first draft? The first draft should include paragraphs supporting your thesis. Each paragraph should focus on one main point. Relevant example, facts, opinions. Provide information that makes your argument credible and specific. Logical sequencing means organize material so it flows naturally for the reader. ठीक है, ये राइटिंग के सेकंड स्टेप में आएगा, पैराग्राफ को सपोर्ट करना, रेलेवेंट एग्जाम्पल देना, फैक्ट्स और ओपिनियंस अपना बना के, देन एंड में लॉजिकल सीक्वेंसिंग. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है व्हाट इफ यू गेट ए न्यू आइडिया व्हाइल ड्राफ्टिंग. क्या होगा जब एक न्यू आइडिया आपके माइंड में आता है वाइल ड्राफ्टिंग? तो क्या है, एड न्यू आइडियाज इन द राइट वे. ठीक है, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड डिसाइड ड्यूरिंग रिविजन वेदर टू कीप देम. क्या इसको न्यू आइडिया को कहाँ पे ऐड ऑन करना है, क्या इसका इफेक्ट होगा इन होल राइटिंग, वो आप अभी डिसाइड कर सकते हो. राइट, ओके. तो फिर नेक्स्ट बताया है उन्होंने व्हाट इफ यू गेट स्टक. क्या हो जाता है जब आप स्टक हो जाते हो किसी आइडिया से, आगे आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, तो उसका क्या हो जाता है? उसमें क्या होगा? रिलैक्स, बी नॉन क्रिटिकल, स्किप अराउंड एंड री रीड अलाउड. ठीक है, री रीड अलाउड, ताकि हमने कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर दी, हमने कुछ गैप तो नहीं कर दिया, छोड़ तो नहीं दिया कुछ इंपॉर्टेंट.
ठीक है, री रीड अलाउड। फिर आगे है राइटिंग बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट। पहले हमें कुछ भी करना है, फर्स्ट वी हैव टू राइट द बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी हमारा ये डिस्कस हुआ था। सपोर्टिंग पैराग्राफ बिफोर योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से पहले जो सपोर्ट्स पैराग्राफ होते हैं दैट इज कॉल्ड बॉडी पैराग्राफ। द इंट्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट फॉलोज। Once body is clear, you will know how to hook the reader. Hook the reader means how to influence the reader, how to you can make it trust in the reader. Write out your thesis early so you stay focused. Structure your each paragraph. अपने पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करो, टॉपिक सेंटेंस लेके आओ, स्पेसिफिक एग्जाम्पल और डिटेल्स उसमें ऐड करो। दिस इज कॉल्ड राइटिंग बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट। फिर आगे नेक्स्ट हमारा उन्होंने दिया हुआ है मेकिंग पैराग्राफ स्पेसिफिक। जो हमने अपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी इन प्रेसाइज लैंग्वेज। प्रेसाइज होता है टू द पॉइंट, स्पेसिफिक मैंने टू द पॉइंट, जो बात पूछी गई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ओनली दिस वी हैव टू डिस्क्राइब। ओके, आवाज आ रही है ना आपको? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। सो प्रिसाइज का मीनिंग होता है टू द पॉइंट बात करना, जो हमारा इंटरेस्ट है उस पे जब जिस पे हम लिखने जा रहे हैं उस पे स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली लिखना, ना कि इधर उधर की बातें घुमा घुमा के करना। फिर तो नो वन कैन अंडरस्टैंड, है ना, व्हाट वी राइट। सो इट शुड बी प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज लैंग्वेज में क्या है, प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव यूज करने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउन क्या क्या होता है, नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए थिंग। और एडजेक्टिव क्या होता है, उसके मेन फीचर्स। और वर्ब्स होता है, वर्ब्स लाइक जो उनके एक्शन वर्ड है, दिस इज कॉल्ड वर्ब्स, लाइक सीम्ड हो गया इसमें, विशल्ड हो गया, ये सब वर्ब्स है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट वर्ड। ठीक है, कंक्रीट वर्ड वो कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स कौन से होते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं बट उनको देख नहीं सकते, लाइक बुक है, ये अब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएगी। ठीक है, nice, good. These are the example of abstract. Sight, sound, smell, taste, touch. So this is called abstract. ठीक है, provide enough detail to answer who, what, where, when. ये structure में बताया गया कि we have to add the details. फिर राइटिंग द इंट्रोडक्शन। अब हमारा फर्स्ट है राइटिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम कैसे लिखेंगे, योर इंट्रोडक्शन मस्ट ग्रैब अटेंशन। ऐसी अटेंशन जो ग्रैब करे अटेंशन को, है ना, आपकी इंट्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए। अब ब्रीफ एनेक्डोट। एनेक्डोट मैंने आपको बताया था, एनेक्डोट होते हैं छोटी छोटी स्टोरीज जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं बंदे के, उसे बोलते हैं एनेक्डोट। ठीक है, ब्रीफ एनेक्डोट मीन शॉर्ट स्टोरीज, कोटेशंस, कोटेशंस लिखनी। अब आगे एक वर्ड है एनोमेटोपोइया। एनोमोटोपोइया, इसको क्या बोलते हैं, एनोमोटोपोइया पता है क्या होता है, लाइक कोई वर्ड्स होते हैं, लाइक हम बोलते हैं ना, वहां से ना श की साउंड आ रही है, तो श जो है दिस इज कॉल्ड एनामोटोपिया। ठीक है, इमिटेट साउंड, जिससे साउंड का पता चलता है। अगर हम बोले थर्ड, ये आपने क्या कर दिया, थर्ड, इट मीन्स इट इज नॉट जस्ट रिलेट टू द वर्ड, इट्स रिलेट टू द साउंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनोमोटोपिया। फिर आगे है अ ड्रामेटिक फैक्ट एंड स्टेटिस्टिक्स। ड्रामेटिक फैक्ट होने चाहिए, ट्रुथ बेस्ड होना चाहिए वो सारा। फिर आगे है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू सेट कंटेक्स्ट। ठीक है, ये सब हमें लिखना है, इस सब चीजों का हमें ध्यान देना है टू हुक द राइडर व्हेन वी आर गोइंग टू राइट इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर आगे इन्होंने बताया है कंक्लूजन का। कंक्लूजन में देखो, डोंट जस्ट चोप, योर रीडर डिजर्व क्लोजर। है ना, हर एक रीडर को एक क्लोजर भी चाहिए होता है। अच्छा, तो उसमें क्या कंसिडर करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू राइट एनी कंक्लूजन, कंक्लूडिंग पार्ट में अ कंपेलिंग फैक्ट और कोट, कोट बताएंगे, कंपेलिंग फैक्ट बताएंगे। रिटर्निंग टू योर ओपनिंग आइडिया, एनेक्डोट और इमेज, अपने ओपनिंग आइडियाज पे वापस जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। रीफ्रेजिंग योर थीसिस, अपने जो थीसिस होगा, जो आपका आइडिया होगा, उसको रीफ्रेज करेंगे। रीफ्रेज मीन्स इजी लैंग्वेज में दोबारा बताएंगे। समराइजिंग योर आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसको समराइज करेंगे। ठीक है, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स, फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करेंगे कि इससे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फिर कॉलिंग द रीडर टू एक्शन, फिर हम रीडर को कॉल करेंगे दैट इट इज रेडी एंड रीडर कैन रीड इट, कॉलिंग द रीडर टू एक्शन। ठीक है,
तो ये सब राइटिंग द कंक्लूजन में ये जो स्टेप्स है आपको ऐड करने हैं। फिर आगे आ जाता है रिवाइजिंग वर्सेस एडिटिंग। रिवाइजिंग क्या होता है और एडिटिंग क्या होता है? रिवाइजिंग क्या होता है? बस हम प्रॉपर रिवाइज कर रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं। एडिटिंग में क्या है, हम एक्शन भी कर रहे हैं, साथ में चेंज कर रहे हैं। एडिटिंग उसको बोलते हैं। तो इन्होंने बोला हुआ दे आर नॉट द सेम, वो सेम नहीं होते। कैसे सेम नहीं होते? देखो, बिग पिक्चर चेंजेस, ठीक है, जब हम रिवाइज करते हैं बिग पिक्चर चेंजेस हो जाती हैं। बट एडिटिंग में स्मॉल सेंटेंस लेवल चेंजेस, छोटी छोटी चेंजेस ही हो पाती हैं, क्योंकि एडिटिंग जो होता है वो थोड़ा बहुत काम होता है। एडिटिंग का मतलब ये नहीं होता कि फुली चेंज कर देना, ठीक है। रिवाइजिंग में इट कैन बी रीऑर्गेनाइज पैराग्राफ, पैराग्राफ को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम रिवाइज कर रहे हैं तो। फिर इसमें क्या होता है, फिक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर, थोड़ी ग्रामर चेक करते हैं, स्पेलिंग्स देखते हैं। री राइट सेक्शन, सेक्शंस को दोबारा लिख सकते हैं, बट इसमें क्लेरिफाई सेंटेंसेस, सेंटेंस को क्लेरिफाई करेंगे जब एडिटिंग करते हैं। ऐड एंड डिलीट कंटेंट, कंटेंट को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। बट एडिटिंग में क्या होएगा, इंप्रूव वर्ड चॉइसेस, वर्ड को अच्छे से डालेंगे, ताकि सामने वाला जो रीडर है जो भी है वो अच्छे से इसको समझ सके। दिस इज कम इन द एडिटिंग। स्ट्रेंथ आर्ग्यूमेंट्स एंड करेक्ट टाइपोज, वो कहते हैं स्ट्रेंथ एंड आइडियाज आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं रिवाइजिंग में, बट एडिटिंग में करेक्ट टाइपोज ही होती है। शॉर्ट में क्या करेंगे, रिवाइज फर्स्ट, आफ्टर द रिवाइज यू कैन मेक एडिटिंग, एडिट लेटर, ठीक है। वो एडिट किन चीजों से होगा, ग्रामर का हो सकता है, पंक्चुएशन का और क्लैरिटी का। जब डिटेल में कुछ करेंगे दिस इज कॉल्ड रिवाइज। फिर अब इसको देखो, अंडरस्टैंड द टर्म्स। रिवाइजिंग, टर्म्स को समझने के लिए पहले रिवाइज करेंगे, सेम वही आ गया। इसमें इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, अलर्टिंग, altering large section of text, removing or moving paragraphs, adding new sections, reorganize ideas। फिर एडिटिंग करेंगे, व्हाट इज इट, एडिटिंग में वही सेम चीज आ जाएगी, इंप्रूविंग लैंग्वेज क्लैरिटी, करेक्टनेस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, ग्रामर को थोड़ा बहुत चेंज करना, ये सारा इसमें आएगा। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग होता है व्हेन वी हैव when we have made something, ठीक है। So after making, after the final, we are रीरीड अगेन इट, वी आर रीरीड मतलब दोबारा हम उसको पढ़ रहे हैं, प्रूफ रीडिंग उसको बोलते हैं। व्हाट इट इज लाइक द फाइनल चेक ऑफ योर एरर बिफोर यू सबमिट योर वर्क, है ना। व्हेन योर रिपोर्ट इज रेडी एंड नाउ यू आर रेडी टू सबमिट योर रिपोर्ट, बट बिफोर द सबमिटिंग यू आर प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग मीन्स यू आर रीरीडिंग, ठीक है। सो फोकस इज ऑन व्हेन वी आर ऑन प्रूफ रीडिंग, तो हम उसके कौन सी चीजों पे फोकस करेंगे, स्पेलिंग्स देखेंगे, पंक्चुएशन देखेंगे, माइनर ग्रामर की मिस्टेक्स देखेंगे, इंश्योरिंग प्रॉपर फॉर्मेटिंग, चेकिंग अवर फॉर टाइपोस, ये सब हम प्रूफ रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। इन राइटिंग व्हाट इज ए हुक, हुक क्या होता है? तो हुक इज अ कोड, सिचुएशन, एक स्टोरी जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है, दैट कैचेज द रीडर्स अटेंशन, वो बोल दिया ना उन्होंने, स्टोरी दैट कैचेज द रीडर्स अटेंशन, जो उसकी रीडर की अटेंशन को कैच करती है, एंड इनकरेज देम टू रीड मोर, दिस इज कॉल्ड हुक। हुक का मीनिंग ये होता है, ठीक है। सो इट इज नॉट पंक्चुएशन मार्क्स और फॉल्स स्टेटमेंट, फैक्ट दैट सपोर्ट योर पॉइंट, ये हुक में नहीं आएगा, ठीक है। फिर है प्रिपेयरिंग योर फाइनल ड्राफ्ट, अब हमने ड्राफ्ट में चेंजेस कर ली, रिवाइज कर लिया, एडिटिंग करी, अब हम उसको फाइनली उसको ड्राफ्ट जो है फाइनल उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फाइनल जब हम कोई भी ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड कोहेजन होना चाहिए। कोहेजन होना चाहिए मतलब एक जो पैराग्राफ है वो दूसरे पैराग्राफ को आगे रिलेट कर रहा है, ये नहीं है कि एक पैराग्राफ कुछ और बोल रहा है और दूसरी लाइन कुछ और बोल रही है, मतलब दे हैव नो कोहेजन, दे हैव नो रिलेशंस। तो कोहेजन का मीन है स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, स्टाइल एंड टोन प्रॉपर होना चाहिए, मैकेनिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबमिशन के दौरान हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ऑल पैराग्राफ्स आर क्लियर, लैंग्वेज इज कंसिस्टेंट, नो ग्रामर्स एंड स्पेलिंग्स, साइटेशन एंड फॉर्मेटिंग मीट गाइडलाइंस, ये प्रॉपर होनी चाहिए। रिवीजन फोकस एरियाज लाइक ऑर्गेनाइजेशन, कोहेजन, मैंने आपको पहले जैसे ऊपर भी बताया था। डज द इंट्रोडक्शन लीड नेचुरली टू द थीसिस, डू बॉडी पैराग्राफ्स हैव क्लियर मेन आइडियाज, ये हम ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग देखेंगे। कोहेजन में ये आएगा कि स्मूथली इंटीग्रेटेड है, कोड्स इंट्रोड्यूस प्रॉपरली, कोड्स प्रॉपर इंट्रोड्यूस भी और कर रहे हैं हम, जो कोड्स हम ऐड कर रहे हैं। इज एनी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ प्लेस और ओवर यूज,
किसी इंफॉर्मेशन को दोबारा तो नहीं यूज कर दिया। एडिटिंग फोकस एरिया को एडिट करेंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टाइल एंड टोन, प्रिसाइज वर्ड चॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब एडिटिंग के फोकस एरियाज है। अगर आपसे पूछेगा कि एडिटिंग में क्या आता है तो आप ये एडिटिंग के फोकस एरियाज बोलोगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर 6th चैप्टर। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आप ये वाले नोट्स को लेके अपने विजन करते हो प्रॉपर, अपना एग्जाम में यही वाले नोट्स प्रिपेयर करके एग्जाम अपना दे के आते हो, तो आई एम श्योर आपके नंबर अच्छे आएंगे। बट आपको इनकी नॉलेज जो है वो इन डेप्थ में होने चाहिए। आपको एक एक स्टेप और जो भी उन्होंने पहले बताए हुए हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट राइटिंग, ये सब, ये आपको प्रॉपर उसके वर्ड जो है टिप्स पे क्लियर होने चाहिए, आइडियाज और पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है। हाँ जी। So this is all about our 6th chapter. Now I'm going to off the class. ठीक है। तो इसके नोट जो है वो मैं आपको क्लास प्लस ऐप पे और व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवा देती हूँ। ठीक है जी, चलो, ओके। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।